यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात है कि काफी संख्या में करीबन 35 लोग अभी तक इस सेशन में आ चुके हैं। इट इज वेरी नाइस, फैंटास्टिक। सो पहला हम इस सेशन की शुरुआत का, ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और उन लोगों के लिए जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा वीडियो रन करेंगे। इस वीडियो में बहुत सारा संदेश है, बहुत सारा मैसेज है। Great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference. It's never about the role, always about the goal. Here's the 7 lessons we can learn from the geese. Number 1, sharing a common goal. As each goose flaps its wings, it creates uplift and aerodynamics orientation that reduces air friction for the birds that follow. By flying in a V formation, the whole flock achieves a 70% greater flying range than if each bird flew alone. Lesson: people who share a common direction and goal can get where they are going quicker and with less effort because they benefit from the momentum of the group moving around them. Make sure your team is aligned towards a common goal. Number 2, increasing visibility. Flying in a V formation increases the visibility as every goose can see what's happening in front of them. The lesson here is to make our organizations visible in both org chart directions. Having top-down visibility enables leaders to stay connected with the edges of the organization to make better informed decisions. Bottom-up visibility enables teams to see the bigger picture, engages them, and empowers them to better align themselves with the organizational objectives. If we have as much sense as a goose, we will stay in formation, joining those heading in the direction we want to go. The sense of community emerges with a willingness to work as a team. Not only is it more efficient, the flock together has better visibility of its surroundings and is more visible as a collective. Number 3, having humility to seek help. When a goose falls out of formation, it suddenly feels the friction flying alone. It then quickly adjusts its mistake and moves back into the formation to take advantage of the lifting power of the bird immediately in front of it. Lesson: be humble to admit the challenges we face and to seek help as soon as we get stuck. This humility will enable you and your team to move faster and achieve more. If we have the sense of a goose, we will openly and confidently acknowledge when we need help and gratefully accept the support that is offered, and will fly harder to stay up with the flock so we can all go longer distances with ease. Number 4, empowering others to lead. When the lead goose in the front gets tired, it rotates back into the formation and allows another goose to take the leadership position. Lesson: empower others to also lead. Micromanaging and keeping tight control will burn you out. It will also disengage and demotivate others around you. People have unique skills, capabilities, and gifts to offer. Give them autonomy, trust, and a chance to shine, and you will be surprised with the outcomes. Number 5, always recognizing great work. The geese honk to recognize each other and encourage those up front to keep up their speed. Lesson: make sure we praise people and give them the recognition they deserve. Lack of recognition is one of the main reasons team members are unsatisfied at work and quit. It's very common for people's efforts to go unnoticed by their peers in a busy and fast-moving work environment. However, remembering to constantly provide recognition and encouragement is vital, and it keeps teams motivated to achieve their goals. Number 6, offering support in challenging times. When a goose gets sick or wounded, 2 geese drop out of the formation and follow it down to help and protect it. They stay with it until it dies or is able to fly again. Then, they launch out with another formation or catch up with the flock. Lesson: standing by each other in difficult times. It's easy to always be part of winning teams, but when things get difficult and people are facing challenges, that's when your teammates need you the most. If we have the sense of a goose, we will stand by each other when things get rough
and we will willingly take the support and guidance that's an offer. Number 7, staying committed to core values and purpose. The geese migration routes never vary. They use the same route year after year. Even when the flock members change, the young learn the route from their parents. In the spring, they will go back to the spot where they were born. Lesson: stay true to our core values and purpose. Strategies, tactics, and products may change in order for an organization to remain agile, but great companies always stick to their core purpose and values and preserve them with vigor. If we have the sense of a goose, we will recover and regroup and resume formation with the greater team headed in the direction that we want to go, and we will stick with the plan until we succeed. इस वीडियो से हमें क्या-क्या सीख मिलती है, कोई शेयर कर सकता है? ये वीडियो हमें क्या-क्या सिखाता है? क्या इसमें 7 लेसन है, 7 सबक है? कोई हाथ खड़ा कर सकता है? 50 लोग हैं इस ग्रुप में, इस वक्त देख रहे हैं। कोई हाथ खड़ा कर सकता है? इस वीडियो में मैं ये चीज समझ रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से पक्षी एक संगठन में रह के, झुंड में रह के जब अपनी उड़ान भरते हैं तो उनको कम एनर्जी में ज्यादा रिजल्ट अचीव करते हैं, कम एनर्जी से। उनका जो उड़ने का जो एक तरीका होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। उस सिचुएशन से क्या होता है कि उनको स्ट्रगल कम करना पड़ता है और अचीवमेंट ज्यादा आते हैं उनको। ये मैं फील। सर, इस वीडियो में जो पक्षियों का जो बताया गया उसमें ये बताया गया है कि भाई अगर किसी लीडर के साथ विश्वास करके संगठन के साथ में अगर चला जाए तो उसके साथ साथ में सभी के गोल अचीव हो सकते हैं और गोल अचीव होने में आसानी रहती है। वेरी नाइस। लॉन्ग ड्राइव, तो ये अपनी लॉन्ग विजन के तौर से है। एक अच्छा लीडर उसको ड्राइव करता है, जैसे ही उसके लीडिंग पावर में लोग आते हैं तो ऐसा लगता है डायरेक्शन मिलता है वो और अपना गोल भी अचीव करते हैं। मान लीजिए कोई लीडर जैसे ही किसी दूसरे को सिखाना चाहता है तो वो उसको आगे की पोजीशन में लाता है, वो थोड़ा बैक आ जाता है। तो उससे क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइवर्ट भी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर होता है, अपना गोल भी शॉर्ट टाइम में अचीव हो जाता है। बहुत अच्छा। तो इस वीडियो में क्या क्या सीखते हैं मैं बताता हूँ। ये वीडियो हमें ये सिखाता है, जो पक्षी होते हैं गीज, हमने बहुत बार ये देखते हैं एक लाइन में उड़ते हैं या वी शेप में उड़ते हैं। जब वी शेप में उड़ते हैं तो इनका विजन बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, ठीक है ना। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि एक जो है, एक पक्षी इनको लीड करता है, इनका लीडर होता है, वो आगे आगे उड़ता रहता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें कमाल की बात यह है कि जब आगे वाला लीडर जो पक्षी है अगर वो थक जाता है तो वो पीछे आ जाता है, दूसरा पक्षी उसकी जगह ले लेता है, उसको लीड करता है। नंबर 1। नंबर 2, उनका डेस्टिनेशन, लक्ष्य क्लियर होता है कि कहाँ जाना है। हर साल ये पक्षी एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करते हैं, पता है आपको। उनका लक्ष्य क्लियर होता है कि कहाँ जाना है, वहां जाते हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि ये इनके जो अगर कोई भी पक्षी इनमें से अगर बीमार हो जाता है या जमीन पे बैठ जाता है तो उसको अकेला नहीं छोड़ते। जैसे ही वो जमीन पे बैठ जाता, बीमार होता है तो जमीन पे आया, उसके साथ में एक पक्षी तब तक रहेगा जब तक वो ठीक ना हो जाए। अगर वो मृत्युमुखी हो गया तो, या ठीक नहीं होगा तब तक वेट करेंगे, अगर ठीक हो गया तो उसको साथ में लेके उड़ेंगे, ठीक है। यानी अपने लीडर को छोड़ते नहीं है अकेले मैदान में कि चलो ठीक है तो थक गया या बीमार है इसको छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तीसरी बात, ये बड़े ट्रांसपेरेंट और ये पावरफुल रहते हैं, यानी कि इनकी एनर्जी इतनी जबरदस्त रहती है कि एक दूसरे का मोटिवेशन मिलता रहता है इनसे। जब ये जो पक्षी होते हैं ना, इनके यंग बच्चे होते हैं ना, ये यंग बच्चों को रास्ता नहीं पता होता है, ठीक है। लेकिन यंग बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए जो पुराने जो बुजुर्ग साथी होते हैं, यानी ओल्ड लीडर होते हैं, एक्सपीरियंस लीडर होते हैं, उनको लेके जाते हैं। एक बार लेके जाते हैं, जनरेशन में फॉलो करते रहते हैं। और उनका मकसद, देखिए, गोल एक होता है, उनका लक्ष्य एक होता है, टीम वर्क होता है इनके साथ में, ठीक है ना। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं, ये सारे सिद्धांत हैं, हमारे बिजनेस में बहुत काम आते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कौन सी ऐसा चीज है जिसकी वजह से हम बहुत मार खाते हैं या जिसकी वजह से हम लोगों को बिजनेस में ला नहीं पाते हैं। कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से बंदा एक मेहनत करने के बाद भी लोगों को बिजनेस में नहीं ला पाता, या फील गेट मूव नहीं कर, या कोई क्लोरोफिल मूव नहीं कर पाता, या माचा मूव नहीं करता, बड़ी मेहनत करता है लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता नहीं है।
बहुत मेहनत, उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा कोशिश करता है, उस पर निराशा हाथ लगती है और उसके बाद वो बिजनेस से धीरे धीरे बाहर होना शुरू होता है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम वीकली करेंगे एक, लेकिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर आपने सिंसियरली फॉलो किया, इसके नोट्स बनाए, इस पर काम करना शुरू किया, तो हम वो गलतियां सुधार सकते हैं जिससे हमारा रिक्रूटमेंट का जो है रेशियो बढ़ेगा। रिक्रूटमेंट बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा वॉल्यूम आएगी तो हम लोग सब डायमंड जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मकसद यही है इस प्रोग्राम का नाम ये बिजनेस एनहांसमेंट स्किल, कि बिजनेस को एनहांस करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन सी स्किल है जो विकसित की जाए। तो आज की डेट में सबसे पावरफुल स्किल कौन सी चाहिए जिससे बिजनेस बढ़ता है? कौन सी आज की डेट में पावरफुल स्किल है जिससे बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस में ग्रोथ आती है? पता आपको? आज की डेट में नहीं, हमेशा से रहा, लेकिन आज ये बहुत पावरफुल टूल है, वो है कम्युनिकेशन, वार्तालाप, संवाद। आप ऑनलाइन संवाद कर रहे हो या ऑफलाइन संवाद कर रहे हो, आप छोटा वीडियो बना रहे हो या 1-to-1 कर रहे हो या जूम मीटिंग में लोगों के साथ, लीडर के साथ मीटिंग लेते हो, तो आपका सबसे पावरफुल टूल है वो है संवाद। आप कैसे संवाद करते हैं, क्या वार्तालाप करते हैं, उसके ऊपर, क्योंकि संवाद ही लोगों को प्रभावित करता है, कम्युनिकेशन ही लोगों को प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, उसी से आपका बिजनेस निकलता है। तो आज की डेट में और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या मार्केटिंग बिजनेस में सबसे पावरफुल चीज है वो है पावर ऑफ कम्युनिकेशन, और इसको सुधारा जा सकता है। बड़ी बात है, इसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, अभी लेकिन उसके लिए हमें सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अपने को जहां जरूरत पड़ेगी मॉडिफाई करना पड़ेगा। हर व्यक्ति, मैं भी करता हूँ, सारे लोग करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है अपने मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें बड़ा काम करना है या डायमंड जाना है तो पहली चीज हमारी कम्युनिकेशन की स्किल को सुधारना पड़ेगा। आइए, पूरा जो सेशन है वो रिक्रूटमेंट पे रहेगा, जितना हर हफ्ते एक सेशन रहेगा, रिक्रूटमेंट को कैसे बढ़ाया जाए और कौन कौन चीजें हैं जिसको हम लोग करेक्ट करके, रेक्टिफाई करके आगे ग्रो हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आपने ध्यान से इस प्रोग्राम को सुन लिया और सीख लिया और आपने नोट्स बना लिया ना, तो समझो कि मैंने गंगा नहा ली, मेरा काम हो गया, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। क्योंकि आप बाकी लोगों को आगे सिखा सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकते हो, लोग आपसे प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे, आपका बिजनेस ग्रो, हम सबका बिजनेस ग्रो। ठीक है ना, कॉमन गोल की तरफ हमारा मिशन है, पैसा कमाना है, डायमंड जाना, रिकॉग्निशन लेना, सम्मान लेना, रेस्पेक्ट लेना और समाज का भला करना, लोक कल्याण करना, यही हमारा मकसद है। यूनिवर्सिटी का मकसद यही है। ठीक है ना, अभी जैसे स्टूवर्ट सर ने कहा सेव 10, कि आप महीने में कम से कम 10 लोगों की लाइफ को बचाएं। सो लेट्स स्टार्ट, प्रोग्राम शुरू करते हैं। ओके, जितने बड़े व्यवसायी हैं, टॉप टाइकून्स है दुनिया के, या टॉप कॉर्पोरेट के सीईओज हैं या प्रोफेशनल हैं, ठीक है, वो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वो सुंदर पिचाई हो या बड़ा व्यवसायी हो, ठीक है ना, बड़ा सीईओ हो या बड़ा मार्केटिंग प्रोफेशनल है, वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या काम करते हैं? कभी आपने इस बारे में सोचा है? हम इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, हम बिजनेस को बिजनेस की तरह से नहीं लेते हैं, तो हम सोचते नहीं कि ये जो बड़े लोग हैं, जो टॉप लोग हैं, वो वहां तक पहुंचे हैं, उनमें कौन सी स्किल है, कौन सी खासियत है और क्या टूल यूज करते हैं ताकि वो हमेशा ग्रो होते हैं, उनका कॉर्पोरेट की कंपनी ग्रो होता है, उनका बिजनेस ग्रो होता है। सोचिए ये लोग क्या करते हैं, बताता हूँ। पहले चीज ये अपनी पर्सनैलिटी को डे बाय डे निखारते हैं, अपग्रेड करते हैं अपने आप को। एक प्रश्न चिन्ह है हम सबके ऊपर, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि आप अपनी पर्सनैलिटी को पिछले 2 साल में कितना अपग्रेड किया है। खुद को प्रश्न पूछिए कि मैंने 2 साल में मेरी व्यक्तित्व को कितना उभारा है। व्यक्तित्व को उभारने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे ट्रेनिंग सेशंस लेने हैं, ठीक है ना। ये जो बड़े कॉर्पोरेट्स के टाइकून्स होते हैं, ये अपनी पर्सनैलिटी को डे बाय डे ग्रो करते रहते हैं। उनके अंदर भी कमियां होती है, ऐसा नहीं कि उनमें कमियां नहीं होती है। हम भी उस बिजनेस में, वी ऑल आर बिजनेसमैन, हम बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं और हम दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो जो बड़े लोग काम करते हैं, बड़ी टाइकून्स लोग काम करते हैं, वो अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। ठीक है, आपने पिछले 2 साल में, 1 साल में अपने पर्सनैलिटी पे कितना
इन्वेस्टमेंट किया है, कितना खर्चा किया। बिकॉज जब तक हम पर्सेंटेज हमारी ग्रो नहीं होगा तो माइंडसेट ग्रो नहीं होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो स्वयं को अपग्रेड करते रहते हैं, हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारते हैं, संवाद को सुधारते हैं। आज की डेट में संवाद ही, अगर आपके पास एक वीडियो आ गया, जो एक बंदा, एक छोटा वीडियो क्लिप आ गई से एक बंदा बकवास कर रहा है, आप 10 सेकंड भी नहीं देखोगे, बंद कर दोगे। लेकिन एक बंदा बड़ा अट्रैक्टिव बात करता है, हालांकि बात एकदम यूजलेस होगी, उसका कोई सेंस नहीं होगा, लेकिन हम उसको देखते हैं, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। ये संवाद की ताकत है, संवाद की कौशल की ताकत है, ठीक है ना। दूसरा क्या करते हैं, अपने जनसंपर्क का दायरा बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये लाखों रुपए देके ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, लाखों रुपए, 20-20, 30-30 लाख रुपए एक सेशन के लेते हैं, देते हैं वो लोग, जा करके ट्रेन करते हैं। अगर एक सुंदर पिचाई जैसा बंदा या बड़ा कॉर्पोरेट वाला बंदा, ठीक है ना, जो सीईओ है किसी कंपनी का, वो अपने को अपग्रेड करने के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। हम, आपको पता है इंडस्ट्री में आप कितना कमा सकते हो, अंदाजा नहीं है, इतना कमा सकते हैं, ठीक है। कमाने के लिए सबसे पहली जरूरत है हमारी संवाद कौशलता को बढ़ाना। उसके लिए जो भी करना पड़े, जहां सीखने की जरूरत पड़े, जहां कम्युनिकेशन स्किल को सीखने की जरूरत पड़े, उसको जाके अटेंड कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आप अपग्रेड होंगे तो आपकी लीडरशिप ग्रो होगी। तो पहला चीज ये आज आपको लिख लेना है कि मैं मेरे पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए पिछले 2 साल में क्या किया, अब क्या करने जा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस करने के साथ साथ सीखने का है, लर्न करने का, अपग्रेड करने का व्यवसाय है। हर व्यवसाय में ऐसे होता है। जो व्यवसाय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ये भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ हम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, अपना खुद का व्यवसाय है, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का। इससे रिक्रूटमेंट आता है, ओके। दुनिया के जितने महान लीडर्स हैं, किसी को भी सुन लीजिए आप, वो बड़े मास्टर कम्युनिकेटर होते हैं, यानी कि जबरदस्त बात करने में मास्टर होते हैं। बहुत सारे लोगों को आप सुनोगे, मैं सुनता हूँ कि ग्रामर अच्छी नहीं रहती, वो हम सोचेंगे यार ये इंग्लिश का सेंटेंस उसने अच्छा नहीं बोला, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसका संदेश इतना पावरफुल होता है, मैसेज इतना प्रभावी होता है कि लोग उसकी बात से मोहित हो जाते हैं, संमोहित हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी जरूरत है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जितने मास्टर कम्युनिकेटर्स हैं वो सबसे बड़े टॉप लीडर्स हैं वर्ल्ड के, ठीक है। वो अपनी मैसेज की डिलीवरी का पैटर्न जानते हैं और सीख चुके हैं उस चीज को, इतने प्रभावी होते हैं कि उनकी बात सुनते हैं लोग, ठीक है। और इतनी कम्युनिकेशन प्रभावकारी होती है उनकी, ठीक है, कि लोग बोर नहीं होते हैं, घंटों सुनते रहते हैं, उनकी बात से बोर नहीं होते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे टॉप लीडर्स को सुना होगा जिंदगी में, किसी भी फील्ड में ले लो, पॉलिटिक्स में ले लो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ले लो, बिजनेस में ले लो या एनजीओ के लीडर्स देख लो जो समाज सेवा करते हैं, या किसी को सुनो, आप सुनोगे तो आपको कभी बोर नहीं होगा। उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी, इन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर दिया, और ये इतना आसान काम है, अपने आप को खुद कर सकते हैं। हर बंदा अपनी स्किल को बढ़ा सकता है। स्किल बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी तो आपकी रिक्रूटमेंट बढ़ेगी, रिक्रूटमेंट बढ़ेगी तो बिजनेस गारंटीड बढ़ेगा, ओके। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि बहुत बार हम बहुत मेहनत करने के बाद बिजनेस नहीं आ पाता है, और इसका कारण हम क्या करते हैं, कहीं दोष बाहर ढूंढते हैं कि यार मेरा अपलाइन सही नहीं है, ठीक है, या कंपनी का सिस्टम सही नहीं है, या इस चीज में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लोग दुनिया में टफ से टफ चीज, बेकार से बेकार चीज को मुंह कर देते हैं, ठीक है। टफ से टफ काम को लोग सुधार के कर डालते हैं। वो जो गलतियां हैं वो अपने अंदर होती है, उनको हमको अपग्रेड करना, अपने आप को रिपेयर करना है, अपने को रेक्टिफाई करना है। खुद को रेक्टिफाई कर दिया, दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, टफ नहीं है, और यूनिवर्सिटी तो सबसे आसान काम है, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट यानी लोगों को आपके बिजनेस में नहीं आते, उसके 5 मुख्य कारण है, ध्यान रखिए, लिख लीजिए 5 मुख्य कारण है जो आपको हमेशा पढ़ते रहना है। पहला कारण है कम्युनिकेशन स्किल का अभाव, यानी जो चाहिए वो बात नहीं कर पाते, आगे बात करें क्या बात करनी है, ठीक है, कैसे बात की जाती है। दूसरी, प्रोस्पेक्ट की रुचि के अनुसार अप्रोच नहीं करते हम लोग। प्रोस्पेक्ट को चाहिए कुछ और, बता दें हम कुछ और है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट को इंटरेस्ट है प्रोडक्ट में, हम बता दें उसको बिजनेस प्लान। प्रोस्पेक्ट को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट है, हम उसको दिखाते हैं प्रोडक्ट। प्रोस्पेक्ट को क्लोरोफिल में रुचि है, लेकिन हम उसको दिखाते थे फिल्म, ठीक है।
तो प्रोस्पेक्ट यानी कि आज जब तक आप बंदे की रुचि को नहीं समझोगे, आपकी अप्रोच परफेक्ट नहीं होगी। इस स्किल को डेवलप करना है, इस कौशलता को आपको डेवलप करना है, और बहुत आसान है, प्रैक्टिस से आता है। इसमें हम काम करेंगे, धीरे धीरे जैसे काम करेंगे वैसे आपका बिजनेस में ग्रोथ आएगी। तीसरी बड़ी चीज है कि अधिकतर लोग जो इस बिजनेस में आते हैं उनके गोल्स क्लियर नहीं होते हैं, उनके सपने क्लियर नहीं होते हैं, उस पर फोकस नहीं होता है, एकाग्रता नहीं होती है, यानी कि कंसंट्रेशन नहीं होता है कि मुझे कहां पहुंचना है। जब आपका गोल सही होता है, जब आपका गोल सही होता है ना, लक्ष्य आपका क्लियर होता है कि आपको कहां पहुंचना है, तो आपके अंदर से एक अलग से ऊर्जा आती है और आपकी संवाद कौशलता अपने आप एक विकसित होना शुरू होती है। ध्यान रखिए, ठीक है। तो पहला चीज हमारा कम्युनिकेशन कमजोर होता है। दूसरा, प्रोस्पेक्ट किसको चाहिए क्या, हम बता दें कुछ और है, ठीक है। तीसरा चीज, लोगों के गोल्स और सपने क्लियर नहीं। कितने लोगों ने अपने गोल्स लिखे हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग या किसी बिजनेस में जाओगे, किसी ट्रेनर के पास जाओगे ना, वो पहले बोलेंगे राइट डाउन योर गोल्स, आपको कहां पहुंचना है, ठीक है, आपको कौन सी डेस्टिनेशन का टिकट चाहिए, वो पहले खरीद लो, देन यू कैन रीच ओवर देयर, ओके। और चौथी चीज है, बिजनेस की मीटिंग्स में हिस्सा नहीं लेना। कह रहे ठीक है, मेरे को सब कुछ आता है, क्या ट्रेनिंग लेना है, क्या सेशन अटेंड करना है, क्या फर्क पड़ता है, आई नो एवरीथिंग, मैं तो उसको सिखा सकता हूँ, ठीक है, उससे बेहतर मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे पैर हम खुद ही काटते हैं, हमारे पैरों में हम खुद ही कुल्हाड़ी चलाते हैं, ठीक है। इस बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल है, आपको सरेंडर होकर हर चीज को अटेंड करना, हर चीज को सीखना बहुत जरूरी है। आप नहीं सीखोगे, ये मानसिकता बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे लीडर्स की लाइफ को खत्म कर देती है। खत्म करते हुए देखा, खत्म होते हुए देखा मैंने, लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय होते हुए देखे। इतने अच्छे मेहनती, इतने अच्छे स्किल्ड, इतने पावरफुल लोग, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन उनको लगता है कि मैं आई नो एवरीथिंग, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होता है, एक लीडर जब बिजनेस मीटिंग में नहीं आता है तो उसकी टीम बिजनेस मीटिंग में आना बंद कर देती है। पहला तो नुकसान ये होता है। दूसरा, वो लीडर को फोन करते हैं डाउन, सर आप क्यों नहीं है, अरे सर अरे वो क्या सिखा रहे हैं यार, मुझे पता है। ये बिजनेस में एक दूसरी मीटिंग को हमको एडिफाई करना, लोगों को मोटिवेट करके, नहीं नहीं यार, हो सकता है आप कहीं किसी काम की वजह से नहीं अटेंड कर पाए, लेकिन बोलो नेक्स्ट मीटिंग में जरूर अटेंड करूंगा यार, नहीं बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यू कम। तो ये मानसिकता ना मीटिंग ना अटेंड करने की, ये बहुत बेकार है। उससे आप नहीं आते तो आपके जो नए प्रोस्पेक्ट और मीटिंग में नहीं आते हैं, आपकी टीम नहीं आती, तो रिक्रूटमेंट में ग्रोथ नहीं आती, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, ओके। पांचवी चीज है कि टाइम बदलता है तो अपनी एक्टिविटीज बदलनी होगी, समय के अनुसार बदलना पड़ेगा, ठीक है। आज के 10 साल पहले की नेटवर्क मार्केटिंग अलग थी, आज के 20 साल पहले की नेटवर्क मार्केटिंग करने का पैटर्न अलग था, आज का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो क्या पैटर्न है उसको सीखना पड़ेगा समय के अनुसार। अगर हम वही पुराने ढर्रे को, यानी कि अगर आज के जमाने में कोई पीसीओ खोल के बैठेगा, एसटीडी खोल के बैठेगा, चलेगा? नहीं चलेगा। हालांकि वो भी कम्युनिकेशन का टूल है, लेकिन उसकी मार्केट खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स नेटवर्क मार्केटिंग में हमने सालों से सीखे हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल्स आज काम नहीं करते, वो रिप्लेस हो चुके हैं। कुछ लोग उसी में अभी बैठे हुए हैं, अभी अटके हुए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक लोग सफेद पैंट, सफेद शर्ट, काला पैंट और काली टाई नहीं छोड़ेंगे, आज भी लोग घूमते हैं काली पैंट, सफेद शर्ट, काली टाई, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। वो टाइम खत्म हो चुका, उसकी उस वक्त जरूरत थी, आज जरूरत नहीं है। तो टाइम के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा, लोगों को बदलवाना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 मुख्य कारण, इससे हमारा बिजनेस में रिक्रूटमेंट नहीं आता है, इस पर हमें काम करना है। लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको काम आएगा हमेशा। ओके, नाउ नेक्स्ट, चलिए आगे। मैंने पहले बोला था, और सबसे बड़ी बात, सब ये सारी चीजें तब ये जब अपने आप को अपग्रेड करना हम शुरू कर देते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करना, अपग्रेड करना शुरू कर देंगे, आप वो हर चीज सीखने को तैयार हो जाओगे जो आपकी जिंदगी को बनाने में काम आएगा, ठीक है। आपकी ग्रोथ होगी, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के लोग चलेंगे और टीम आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टूल है बिजनेस को ग्रो करने का, वो है कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना। मैं बहुत बार देखता हूं लोगों से बात करते हुए, लोगों को ये पता नहीं रहता है किस समय क्या बात करनी है। समय, काल, परिस्थिति के अनुसार हमें बात करनी रहती है, किस व्यक्ति से क्या बात करनी है, कौन सा व्यक्ति किस चीज में फिट होता है,
ये एक स्किल है, एक कौशल है, ये बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो पहला काम है आपको बिजनेस में अगर बड़ा काम करना है तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना, सुधारना। ठीक है ना। तो देखो, जब एक प्रभाव से आप बात करोगे ना एक प्रभावशाली तरीके से, ठीक है ना, तो सब लोग इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। अदरवाइज आपकी बात नीरस और बोरिंग हुई तो लोग कोई नहीं सुनेंगे, यानी आपसे दूर हटना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमेशा पहली चीज, अगर अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने संवाद कौशल को बढ़ाना है, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना, तो हर मीटिंग्स में नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है ना। हर मीटिंग्स में डायरी लेके बैठना शुरू कीजिए। पहला, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के धर्म का पालन करते हो, ठीक है, और इस बिजनेस में आपको लगता है कि बहुत बड़ी संभावना है और आपकी जीवन बदल सकती है, तो पहला मेन प्रिंसिपल है, आपके पास डायरी होनी चाहिए। यू नीड टू हैव योर डायरी इन एवरी मीटिंग। आप जो करोगे आपकी टीम वही करेगी। ठीक है। देखिए, आपका नॉलेज कितना ही गहरा क्यों ना हो, आपने बहुत कुछ ज्ञान ले लिया, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हुई, आपकी आवाज एकदम फ्लैट है, नीरस है, लोग बोर हो रहे हैं। ठीक है ना। तो आपका नॉलेज किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता, किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज वाले लोग होते हैं, लेकिन वो बात करते हैं तो लोग सुनना पसंद नहीं करते। ठीक है। यानी कि हमारी बात करने की कौशलता बहुत पावरफुल होती है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर लोगों की आप में रुचि होनी है, लोगों में आपकी रुचि आपने बढ़ानी है, तो आपकी क्वालिटी को सुधारना पड़ेगा, वार्तालाप की क्वालिटी को सुधारना पड़ेगा। ठीक है ना। ओके, अभी सब बहुत अधिकतर लीडर्स क्या गलती करते हैं पता है आपको? हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर डालते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। ठीक है। फेक अजम्पशन और फेक कम्युनिकेशन दोनों बहुत घातक है। ठीक है ना। दुनिया के जो टॉप लीडर्स है ना, वो कभी भी खोखली बात नहीं करेंगे, आडंबरी भरी बात नहीं करेंगे, ये वो बात नहीं करेंगे जिसका कोई सर पे नहीं, टांग नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है कि हम बहुत बार ऐसी बातें कर डालते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। एक आदमी ने एक बंदे को बोल दिया कि आप क्या बात करते हो, मैं अगले 2 साल में 20 करोड़ में मेहनत करूंगा। संभव है क्या? हो सकता है, चमत्कारी व्यक्ति कमा सकता है, लेकिन संभव नहीं है। अब सामने वाला बंदा एक अच्छी पोजीशन पे है, उनका खुद का व्यवसाय है, प्रोफेशनल बंदा है, जब ये बात सुनता है तो क्या उसको बात डाइजेस्ट होगी? क्या वो आपके साथ चलने को तैयार होगा? आपके बिजनेस में चलने को तैयार होगा? नहीं होगा। नंबर 1। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग जो है अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत घातक होता है। आप देखोगे ना, वर्ल्ड के जितने भी टॉप, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जो मेंटर है, ठीक है ना, वो हमेशा अपने आप को कभी सुपीरियर नहीं बोलता, सुपीरियरिटी साबित करने की कोशिश नहीं करता। ठीक है ना। क्योंकि उनको पता है कि उससे उनकी पर्सनैलिटी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो सीधी बात करते हैं, सटीक बात करते हैं, उसमें लाग लपेट नहीं होती है। तो ध्यान रखिए, अगर हमें बिजनेस में ग्रो होना है तो सटीक, सीधी, बिना लाग लपेट के सरल जितनी बात करोगे उतना प्रभावकारी बात होगी, उतना लोग आपकी बातों के प्रति आकर्षित होंगे और आपका बिजनेस ग्रो होगा। थोड़ा पीछे लेते हैं। ओके, नाउ ये प्रश्न है कि आप कहाँ खड़े हैं, इसे विचार करें। इन चीजों में से आप कहाँ खड़े हैं? कई बार हमारी आदत पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है, ये कोई गलत नहीं है, इसको सुधारा जा सकता है। कई बार 5 आपके दोस्त बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले मिल गए तो हम भी उसकी आदत के शिकार हो जाते हैं, और जिसके सर पे नहीं होते से बात करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो क्या हम खोखली बात करते हैं, ये हमारी बातों में आडंबरित लगता है, तो उसको बंद करना हाथ से। ठीक है ना। कभी भी किसी से अपने आप को सुपीरियर नहीं करना है कि मैं बहुत सुपीरियर होगा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं। ठीक है। आप जितने हम्बल रहोगे, जितने विनम्र रहोगे ना, और जितनी सरल और सीधी बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल का, संवाद का सबसे पहला मूल कारण ये है। देखिए, जो बंदा सरल सीधी सिंपल बात करता है ना, लोग उसकी बात सुनते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। ओके, तो वार्तालाप से, कम्युनिकेशन से हमारी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा निखार आता है। आपकी प्रभावशाली वार्ता है ना, लोगों को आकर्षित करती है। लोग आपसे बार बार मिलने की कोशिश करेंगे, आपको बार बार सुनने की कोशिश करेंगे, अगर आपका व्यक्तित्व, आपका कम्युनिकेशन स्किल पावरफुल बनता है तो। ठीक है ना। आप जिस दिन इस क्वालिटी को विकसित कर लोगे, जिस दिन आपकी क्वालिटी विकसित हो जाएगी, 99% आपकी जीत पक्की है। इस बिजनेस में या किसी फील्ड में, जिंदगी में आपको हरा नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि इंसान आपकी बात तब सुनेगा जब आपकी बात प्रभावशाली होगी, और बाद में वैल्यू होगी, बाद में वजन होगा, और बात नपी तुली होगी, सरल होगी, सिंपल होगी। ओके,
कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन भी होता है। कई बार हमें लगता है कि मैं जो बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, और लोग मेरी बात से प्रभावित होता है हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमको लगता है लेकिन लोगों को नहीं लगता। इसका जब आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसका चेहरा क्या बात कर रहा है, आपका चेहरा क्या बात कर रहा है, सामने वाला का चेहरा क्या आपसे संवाद कर रहा है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपकी बात उस पर प्रभाव डाल रही है या दुष्प्रभाव डाल रही है। ओके, ये प्रैक्टिस की बात है, धीरे धीरे इसमें हम कार्यक्रम करते रहेंगे तो आप सीखते जाओगे, हम 100% सिखाएंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कम्युनिकेशन स्किल को सिखाना बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है ना। अगर हमने कुछ फॉर्मूला प्रैक्टिस में ले आए तो आप जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। फ्लुएंसी अच्छी होने के लिए क्या करना है, आपको बुक पढ़ना है, किताब पढ़नी है जोर जोर से। कोई भी बुक लीजिए, अच्छी बुक, उसको जोर जोर से पढ़िए। आज की डेट में मैं पढ़ना छोड़ दिया है, ठीक है, देखना ज्यादा शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आपकी वार्तालाप को अगर धार देनी है, फ्लुएंसी करनी है, तो आप पढ़िए रोज सुबह 10 से 15 मिनट या रात को किताब लेके पढ़िए। इससे आपकी जबान जो है ना लचीली होगी, ठीक है। और आप जब कोई अच्छी किताब पढ़ो तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज और शब्द आपके सिस्टम में जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, जब आप किताब पढ़ते हो या अपनी फ्लुएंसी को सुधारने के लिए, अपनी धारा प्रवाह को सुधारने सीखते, तो अपने को पढ़ना ही नहीं है, सुनना भी है। अधिकतर लोग जब बात करते हैं तो खुद नहीं सुनते। अधिकतर लोग मीटिंग करते हैं, खुद नहीं सुनते कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको विकसित कैसे करना है, एक कोई भी अच्छी किताब ले लीजिए जो आपको पसंद है, ठीक है, उसको पढ़िए और दिमाग में मैं सुन रहा हूँ, पढ़ते जाइए, सुनते जाइए। देखिए आपकी जिंदगी में 21 दिन के अंदर परिवर्तन आएगा। नंबर 2, अगर दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है तो उसको बीच में कभी भी काट के बात नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलती है। लोग बात करते हैं बीच में बोलते 1 मिनट रुको, मैं बताना चाहता हूँ। डोंट डू दिस थिंग, बी ए गुड लिसनर। हमेशा बोलते हैं बातों को सुनिए पहले, ठीक है। आप सुनोगे तो आपको उस बातों का सही ढंग से जवाब देने का सॉल्यूशन मिलेगा। हम आधी बात सुनते हैं, आधी बात नहीं सुनते, उसका मतलब हम कुछ और निकालते हैं और बात का वतंगड़ बन जाता है। तो हमेशा कोई व्यक्ति बात करता था, आप शांत होकर उसको सुनिए, वो बंद हो जाता है, चुप हो जाता है, उसके बाद उसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के बीच में बात का फ्लो कभी ना तोड़िए, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा सही राइट टाइम पे बोलना, स्पीक एट राइट टाइम बोलते हैं, सही समय पे वक्त बात करिए। अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हम इतना बात करते हैं कि हमको ये अंदाजा नहीं रहता है। तो जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठोगे तो ध्यान रखिए कि मैं इनकी बात सुनूंगा, उसके बाद मेरी बात रखूंगा। जब मेरी बात रखने के बाद वो अपनी बात रहेगा, उसको सुनूंगा, उसको मेरी बात रखूंगा। तो मेरे कान से सुनूंगा, दिमाग से समझूंगा। ओके, तीसरी चीज, बंदा जिस तरह से बात कर रहा है उस हिसाब से अपनी टोन और वॉल्यूम बदलनी, इस्तेमाल करना चाहिए। वो हम आपको प्रैक्टिकल प्रोसेस सिखाएंगे। कई बार क्या होता है, एक बंदा बहुत सॉफ्ट बात कर रहा है, हम बड़ी तेज जो ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं ना, ठीक है, सामने वाला इरिटेट हो जाता है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप भले बहुत अच्छी बात कर रहे हो, सामने वाला का स्वभाव कैसा है, सामने वाला बड़ा जोर जोर से बात कर रहा है, आप बड़ी धीमी बात करोगे तब भी बात नहीं जमेगी। तो ये होता है समझ से को मैच करना, ठीक है ना। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आप बात करते हो, जूम मीटिंग में बात करते हो, आप लीडर्स का ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, तो हमेशा ये निश्चित करें कि आप जो बात कर रहे हैं वो बात उनको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ईमानदारी से अपने लीडर्स के साथ फीडबैक ले, क्योंकि आपको आगे बाकी टीम से बात करना होगा, आगे बड़ी मीटिंग्स करनी है। कई बार क्या होता है कि लोग खुश करने के लिए बोलते हैं समझ में आ रही है, तो उसको हमेशा बोलना भाई मुझे खुश करने के लिए मत बोलिए, लेकिन आप मुझे फीडबैक दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही है। इससे क्या होगा, आपकी वार्तालाप की क्षमता को बहुत बड़ा सुधार मिलेगा। जब भी बात करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ बात करना चाहिए, ठीक है। दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं कभी नहीं सोचना, दूसरे लोग क्या मैं बात करूं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन आप में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आत्मविश्वास अगर नहीं झलक रहा है, ठीक है, बंदा आपकी कमजोरी को पकड़ लेगा। अगली बात, हमेशा निश्चित करें कि आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बिजनेस में अगर एक भी गलत शब्द निकल गया आपका, ठीक है, किए किराए पे पानी फिर जाता है। सही शब्दों का इस्तेमाल करें, ठीक है। कई बार गलती से लोगों के मुंह से गाली निकल जाती है, ठीक है ना, उनको लगता है कि कॉमन एक फ्लो हो गया, अपनी जिंदगी में आदत पड़ चुकी ना,
लेकिन लोग बंदा सामना सोच रहे हैं कैसे बात कर रहा है, इतनी बड़ी बिजनेस की बात कर रहा है और ये जबान कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। अगली बात, कभी भी आप लोगों से बात करते तो अपनी प्रशंसा न करेंगे कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे को ये है, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं तुरम खा हूं, सिर्फ मैं रूबी हूं, मैंने इतना बड़ा काम किया। कभी भी नहीं, कभी मत ना हो, कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं कभी ना करे। उससे लोग क्या सोचते हैं कि यार अपना मुंह मियाँ मिठू है, ठीक है ना। और आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको कभी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, जो बोलता हूं मैं सही बोलता हूं, दुनिया मेरे अलावा कोई सही बोल ही नहीं सकती, ठीक है ना। कई बार हम भी गलत हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है। ओके, तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? जब भी आपको मौका मिलता है बात करने का, लोगों के बीच में बात करिए, बड़े ग्रुप में नहीं। अगर 5-7 लीडर्स आपके साथ बैठे हैं, होम मीटिंग हो रही है, आप खड़े होइए, बात करिए। आप देखिए, जो जिस चीज का डर लगता है ना, उस चीज को बार बार करेंगे ना तो डर भाग जाता है। आत्मविश्वास पैदा करने का एक ही तरीका है कि अगर आपको लगता है कि आप में उतना आत्मविश्वास नहीं है, 5 दोस्त है, 5 को बैठाइए, होम मीटिंग करिए, आप बात करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए। आत्मविश्वास बढ़ने का दूसरा तरीका ये है कि आप जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतना ज्यादा आइडियाज आएगा, उतना ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन होगा और आपको ये पता चलेगा किस तरह के व्यक्ति से कैसे बात करनी है। सबसे ज्यादा जितने अधिक लोगों से मिलोगे उतना अधिक आपकी कम्युनिकेशन पावरफुल होगी, क्योंकि जब आप मिलने निकलते हो तो हर किस्म का बंदा मिलेगा। आपको मजदूरी मिलेगा, आपको प्रोफेशनल भी मिलेगा, आपको मार्केटिंग वाला बंदा मिलेगा, आपको सेल्स वाला बंदा मिलेगा, बिजनेसमैन मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। आप सुनिए, उनको मिलोगे, बात करोगे, सुनिए वो बंदा कौन सा बंदा किस तरह से बात करता है, ठीक है, बराबर है। और कम्युनिकेशन स्किल का रोज अभ्यास करें। आप जो बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चेहरा कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो, सामने वाला समझ जाता है। हमेशा बोलते हैं ना, आपका चेहरा और आपकी जुबान एक बात होनी चाहिए, एक बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान होता है इस इंडस्ट्री में कि लोग दिमाग से बात करते, दिल से बात नहीं करते, तो चेहरा कुछ और बोलता है, ठीक है, दिमाग कुछ और बोलता है। बॉडी लैंग्वेज को सुधारने का प्रयास करें, ठीक है, इसमें हम काम करेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो हम जब भी सेशन करेंगे आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। खुद को सुने, जब भी बात करते हैं स्वयं को सुनना शुरू करें। लिसन योरसेल्फ। अगर आप जूम मीटिंग ले रहे हैं सुनिए, ग्रुप मीटिंग ले रहे हैं अपने कानों से सुनिए आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है। और मैं, मेरा, मैंने, इन शब्दों को त्याग दिए। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने बड़े ये झंडे गाड़े हैं, कोई मायने नहीं रखता दुनिया में। ये 3 शब्द जो है वो बहुत खतरनाक है। इसके लिए बोलते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, बोलता है आई को हमेशा वी में चेंज करो। ये 3 शब्द आज से त्याग दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये इतनी बड़ी ईगो है, इतना बड़ा अहम है जो हमें हमेशा नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, सहनशीलता विकसित करें, ठीक है ना। सहनशीलता और पेशेंस रखें, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, लोगों को अपनी बात करने का मौका दे, ठीक है ना। जब भी व्यक्ति से मिलते हैं आपको ये सोचना चाहिए व्यक्ति से मुझे किस तरह पे बात करनी है, बंदे का प्रोफाइल क्या, बैकग्राउंड क्या, मुझे बात क्या करनी है, ठीक है ना। और उस चीज पे कभी चर्चा ना करें जिसके लिए आपको ज्ञान नहीं है। अगर आज कचरा ज्ञान है तो कचरा हो जाएगा आपका। कई बार लोग कुछ भी नहीं पता उसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। आपको उस बंदा किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है, आपको नहीं पता था, आप पूछे सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, फिर आप मुझे मेरा ज्ञान बढ़ा सकते हैं, बंदा खुश होगा। लेकिन हमको पता ही नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं से सुन लिया और चर्चा करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होगा, अपना ज्ञान जब घुसेड़ते हैं, सामने वाला जो है वो आपसे निराश होता है, आपके साथ नहीं रहता। ओके, स्वीकार करने, कभी भी आपकी गलती हो जाती है, स्वीकार करने की आदत डालें। आज ये लिख लीजिए कि कभी भी मेरी गलती होती है, मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, ठीक है। जब आदमी एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है तो उसके रिजल्ट बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है ना। कभी भी अपने आप को बहुत बेहतर साबित करने की कोशिश मत करो। कई बार हो जाता है कि भाई गलती हो गई, सॉरी यार, कई बार हो जाता है, मिस्टेक हो गई, लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। तो लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ यार ये बंदा डाउन टू अर्थ है। ओके, तर्क वितर्क से कभी ना बचे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लीडर्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम कौन और मैं कौन हूं, तुम क्या कर सकते हो, मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, ये वो ये। जहां आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, आर्ग्यूमेंट आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। दैट्स यू नो दिस थिंग, आर्ग्यूमेंट टेक्स अस नोवेयर। तर्क वितर्क कुतर्क आपको कहीं नहीं ले जाते, उल्टा लोगों में दरार पैदा करते हैं, ठीक है।
अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है बहस का मुद्दा बन रहा है, तो उस विषय को वहीं छोड़ दें और दूसरा अलग दिशा में टॉपिक को ले जाए। खासकर पॉलिटिकल, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल डिस्कशन, धार्मिक डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, उनको अंदाजा नहीं लगता कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, उससे उसकी भावना आहत हो सकती है, ठीक है ना। तो कभी भी ना करें, कहीं में भी तर्क करने वाला बंदा है तो उसको नमस्कार कर लें और टॉपिक को बदल दें। इससे आपका स्वभाव और आपका नेचर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ओके, तो ये था सेशन आज का। लेकिन आज का आपको हम एक्सरसाइज देंगे, एक हफ्ते के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करना, ठीक है। पहला चीज, आज से आप जब भी किसी की बात करेंगे आपको उनकी पूरी बात सुननी है। जब तक अगला व्यक्ति अपनी बात पूरी ना करे आपको शुरू नहीं करना है। नोट मान लो, लिख लो कि आज के बाद इस वक्त कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। ओके, 9:19 हो गई। आज के बाद जो भी व्यक्ति से मिलूंगा मैं पूरी बात सुनूंगा, यानी पत्नी की भी बात पूरी सुनूंगा, पहले नहीं टोकूंगा उसको, उसके बाद उसको जवाब। घर से शुरुआत करें। अपनी बीवी अगर आपको कुछ बोल रही है तो उस बीवी की बात सुनिए ढंग से कि आपकी बीवी क्या बोल रही है, बीच में मत टोकिए, फिर उसको जवाब दीजिए। इससे आपकी ये कौशलता विकसित होगी, स्किल विकसित होगी, जो बहुत आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। आज से आप बात करोगे, एक हफ्ते कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जिससे लोगों को कठोर लगे, लोगों को आघात पहुंचे, या लोगों को चुनौती देने वाला शब्द नहीं बोलना है कि तुम क्या समझते हो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लिख लो कि एक हफ्ता में किसी को चुनौती देने वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरी बात से किसी को आघात नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। और फालतू बकवास करना बंद करना। एक हफ्ता आपको कोई गॉसिप नहीं करनी है। जिस बात का कोई सेंस नहीं है आपके जीवन में, उस बात में एनर्जी क्यों कमानी। तो आप बात करोगे तो सीमित बात करना है, लिमिट बात करना है, गॉसिप नहीं करना है। कई बार हम घंटों गॉसिप बात करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, उनको ये भी समझ नहीं आता है सामने वाला आपकी बात से खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सामने वाले को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या सामने वाला आपसे इरिटेट हो रहा है, नहीं। तो गॉसिप सबसे डेंजरस है। लिमिटेड, हमेशा जितनी स्वीट शॉर्ट बात करेंगे उतना आपका व्यक्तित्व निखरेगा, उतने आपके साथ लोग आएंगे। ओके, तो कर्कश, कठोर, अशिष्ट शब्दों से बचना है आपको, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है। जब किसी से बात करें तो मुस्कुराहट के साथ बात करें, जब किसी से मिले मुस्कुराहट के साथ मिले। अभी मैं मेरे एक साथी के साथ कैंपेनिंग कर रहा हूँ कुछ दिनों से, ठीक है, तो मैं उसको सिखा रहा हूँ। जब मैं स्माइल करके किसी व्यक्ति के साथ मिलता हूँ तो बंदा स्माइल करके मेरी बात सुनता है। जब मैं बगैर स्माइल करके ऐसे ही मिलता हूँ, बंदा सॉरी आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, ठीक है ना। स्माइल का मतलब ये है कि स्माइल जब करते हैं, दांत नहीं दिखाना होता है। जब आप मुस्कुराते तो सामने वाले लोग बोलते हैं कि साहब आप कैसे हैं, तो सामने वाला मुस्कुरा दिया, इसका जवाब है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इसका मतलब उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया, नाउ यू कैन टॉक, ठीक है ना। तो बात करते हुए खुद को सुनना है, आपने क्या बात कर रहे हो, पूरी वार्ता रिकॉर्ड करें। अगर किससे बातचीत कर रहे हो, आपका मोबाइल है आपके पास, इसको रिकॉर्डिंग करना शुरू करें, आपकी जिंदगी में बहुत फायदा होगा। कई बार हमें पता नहीं चलता, अंदाजा नहीं आता कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग करें और उसको घर पे जाके सुने, इससे आपने कौन सी गलतियां करी हैं आपको समझ में आएगा। ओके, और ये छोटी एक्सरसाइज है जो हमेशा करनी है। ये प्रूवन है कि 2 मिनट भस्त्रिका करना है आपको, 10 मिनट कपालभाति करनी है, 10 मिनट अनुलोम विलोम करना है। इससे आपका जो विवेक है ना बहुत अच्छा काम होता है, आप खुश महसूस करते हो। आपको खुश महसूस करने के लिए अपना फील गेट तो है ही, सुबह हिनी माते पीजिए, ठीक है ना। इससे आपकी संवाद शक्ति प्रबल होगी। ओके, तो ये एक सेशन था, पहला सेशन। इससे आपकी रिक्रूटमेंट बढ़ेगी और इसको मनन करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ये आपके लिए था, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए था। थैंक यू वेरी मच। शेष अगले हफ्ता और टू होस्ट। ओके, थैंक यू, वेरी गुड शर्मा सर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रोग्राम को लोग प्रोफेशनल लोगों के पास जाकर 20-20, 30-30 हजार रुपए देते हैं। मैं गया था कोई टाइम में, वो एसी हॉल में बिठा के करीब 15,000 रुपए लेकर वो यही चीज सिखाते हैं। तो थैंक गॉड कि आप हमारे साथ हैं और हम लोग को ये फ्री में जानने को मिलता है। मैं कुछ लोगों से टेस्टिमनी लेना चाहूंगा कि आपने इसमें से क्या सीखा। जैसे मैंने एक चीज सीखी कि किताब को पढ़ते समय जोर जोर से पढ़े और खुद को सुने। एक्चुअली मैं बात करता हूं तो खुद को सुनता हूं, ये टेक्निक तो थी मेरे पास, लेकिन किताब को पढ़ते पढ़ते जब हम खुद को सुनेंगे, जोर जोर से बोलेंगे और खुद सुनेंगे, तो हमारी वाणी खुलेगी।
तो कोई है ऐसा जो इस ट्रेनिंग पर बात करना चाहे कि उन्होंने कोई पॉइंट नोट किया, बोले यहाँ इससे मैंने एक चीज सीखी और इसको मैं अपने जीवन में हिस्सा बनाऊंगा? कोई हाथ खड़ा कर सकता है? ओके, नंदलाल जी। जी नंदलाल जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत ही अच्छा शानदार सेशन लिया और मैंने जी। जो दो बात सीखी है सर, एक मतलब बातें तो बहुत सारी है। एक तो समय काल परिस्थिति के अनुसार बात करनी है यस। कि किस पोजीशन में अपन बैठे हैं और वहाँ क्या बात करनी है, इसका बहुत ध्यान रखना। समय काल परिस्थिति बहुत बड़ी बात बताई है, इसको मैं दिमाग में फिट कर ली मैंने। बहुत जी सारी जी जगह जी ऐसी नहीं करनी होती तब भी बात कर देते हैं। एक जो पूरी बात सुनने के बाद ही बात करनी है। हमेशा मेरी थोड़ी सी आदत, थोड़ी सी एक कमजोरी है कि वो थोड़ा बोला रही, ऐसा मैं समझता हूँ कि बस समझ गया और आगे जाके बात करने लग जाता हूँ। जी तो जी घर जी से जी। शुरुआत करूंगा, बच्चों की पूरी सुनूंगा, पत्नी की सुनूंगा तो आदत पड़ जाएगी और कल से इसको मैं करूंगा। और वेरी और वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा और मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा और सा मेरे को कमिटमेंट। और कमिटमेंट भी मेरे ज्यादा रहता है, फिर उसको पूरा करने में दिक्कत बहुत आती है। तो मैं जी जो जी कर जी, सकता बहुत। हूँ वही बात करूंगा। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब आज की पहली मीटिंग से आपको ये बड़ा फायदा हुआ, और अगर इनमें से आपने किसी एक चीज को जीवन का हिस्सा बना लिया नहीं, तो तीनों का बनाऊंगा सर। तीनों बस, पॉइंट तो मुझे वैसे बहुत अच्छे लगे, तीनों को बनाऊंगा सर। जिंदगी बदलने में टाइम नहीं लगेगी। और ऐसे प्रोग्राम शर्मा सर के पास बहुत सारे हैं, ये तो एक छोटा सा झलक है। ठीक है, थैंक वेरी यू। गुड, बहुत बढ़िया। और कोई व्यक्ति जो कहना चाहें, जिनको अच्छा लगा हो? और नहीं तो उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा, और हम हर परमार हफ्ते इस रमेश ट्रेनिंग को। रमेश भाई परमार बात करना चाहता हूँ। धर्मेश भाई। परमार साहब, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी। यस सर, गुड इवनिंग। वेरी इवनिंग। अरे क्या जबरदस्त जगह पे बैठे हो आप तो, फल फ्रूट पेड़ पौधों के बीच। हाँ सर, अभी तो फिल ग्रेड भी आ गया और सुपर क्लोरोफिल भी इतना बढ़िया चल रहे हैं सर। तो अभी तो जी गार्डन में ही बैठे हुए ऐसा लग रहा है। जी और जी शर्मा जी साहब की बात सुनने के बाद तो पूरा जोश आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। काफी वेरी समय गुड। से ये टॉपिक तो होता है, लेकिन आज मैं और मेरी डाउनलाइन के साथ में हम लोग गए हुए थे। तो 3 फिल ग्रेड का ऑर्डर तो लिया, लेकिन सामने वाले बंदे को 2 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया। वो भी सोच रहा होगा कि यार सब कुछ बोल रहा है, मुझे अच्छा लगा। हालांकि वो कहना चाहता था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जी कई बार होता है कि हमारे पास जो नॉलेज होता है बोले सब दे दो। तो जी जी एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना बहुत जरूरी है सर। उसके बाद उठते समय फिर मुझे भी रियलाइज हुआ, फिर मैंने भी 2 हाथ जोड़ के बोला कि आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये सब मैंने बताया तो वो गले लग गए। तो बिल्कुल सही बात है शर्मा साहब की, कि सबसे पहले हमें सुनना ही, भगवान ने इसीलिए 2 कान दिए। तो सुनो जी जी। और उसके बाद आंसर दो, तो कुछ बात अलग होती है। सारा नॉलेज जाके हमारे जो सुना है वो दे नहीं देना है। थैंक यू जी वेरी मच सर। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो बस आते रहें और मिलकर हम लोग बड़ा इतिहास रच सकते हैं सर। डन सर, डन, सब 100% ट्रेंड करना है लोग सर। हैं। सब ट्रेंड डन लोग डन। हैं, अब करने की जरूरत है। बाकी हमें सब पता है कि कब कहाँ क्या करना है, जानते यस हैं सर, यस कुछ। सर। और ये अलाइनमेंट है, ये जो ट्रेनिंग है हमारा अलाइनमेंट है। जब गिटार ढंग से नहीं बजे तो उसके तार थोड़े टाइट लूज करने होते हैं ना। यस यस यस। तो हम सब मेहनत तो करना जानते ही हैं, लेकिन थोड़े तार अगर टाइट लूज शर्मा सर कर देंगे तो हम और नहीं, अच्छे से बहुत बजेंगे। बहुत बढ़िया हो गया सर। ये एक सुलगता हुआ भट्टा है। काफी सारे जी, डायमंड थे जो बाहर निकल चुके थे, अंदर भट्टे भट्टे में में सब से। तो वापिस आके चार्ज हो रहे सर। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, वेरी बहुत, गुड। शर्मा साहब की बहुत बहुत उपकार है कि फिर से आप लोगों ने मिलके शुरू किया सर। दिल से बहुत बड़ी बधाई है सर। काफी थैंक सारे यू, लोगों की अभी थैंक यू, लाइफ बन जाएगी। थैंक थैंक यू यू, वेरी मच थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको कुछ न कुछ फायदा हुआ होगा। जिसको फायदा हुआ है वो जरूर इसको लिखें, मनन करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। क्योंकि आज से 10 साल पहले मैं आज जो हूँ वो नहीं था, और लेकिन मेरी एक आदत रही है कि मैं चेंज करने को अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ। उसी का परिणाम है कि मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। और मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। ये डन सर। हमारी जो हेल्थ की मीटिंग में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल बिठाएं। कल की मीटिंग बहुत जबरदस्त रहने वाली है, और मिलकर करते हैं हंगामा। दिसंबर नया महीना चालू हो चुका है, नया टूर चालू हो चुका है, और इस महीने में हम लोग बहुत कुछ करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। नाइट सर।